آپ کیا سمجھتے ہیں خواتین کی جو ٹرولنگ اور سائبر تھریٹس ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کیا کرے؟ میرے خیال سے تو خواتین کے سائبر کرائمز کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے ایف آئی اے کے اندر، یا الگ ڈیسک ہونا چاہیے ہر پولیس اسٹیشن میں۔ انہوں نے آئی ٹی سٹی بنا دیا ہے لیکن انٹرنیٹ کو بند رکھ دیا ہے۔ شہزاد فاطمہ صاحبہ کو تھوڑا سا ایمبیشیس ہونا چاہیے، 30% سے انہیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست نہیں چاہتی کہ پاکستانی شہری انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنی آواز اٹھائیں اور جو ظلم اور غلطیاں ہو رہی ہیں اس ملک میں اس کے بارے میں بات کریں۔ تو جو ابھی منسٹر صاحبہ ہیں آئی ٹی کی، ان کو جو بتایا جاتا ہے وہ آگے جا کے کہہ دیتی ہیں، لیکن وہ اکثر جو ہے غلط ہوتا ہے۔ تو یہ تو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن بھی ہو جاتی ہے اکثر۔ السلام علیکم، مائنس نیوز کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا۔ آج ہم نے مدعو کیا ہے خاص طور پر جو ڈیجیٹل رائٹس ہیں اس کے ڈیفینڈر ہیں، ہیومن رائٹس، گورننس، ڈیموکریسی اور متعدد جو ٹیکس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پر عبور رکھتے ہیں اسامہ خلجی صاحب۔ بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا۔ تو اسامہ، میرا سب سے پہلے آپ سے سوال ہوگا، ٹیکنیکلی لوگوں کو سمجھائیے گا، کبھی جب انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو کبھی تو یہ کہا جاتا ہے جی جو وہیل مچھلی ہے وہ وائر کھا گئی ہے، پھر جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جب بلایا جاتا ہے جو وزیر مملکت ہے شہزاد فاطمہ، جو کہ ظاہر ہے ان کا پورٹ فولیو ہے اس سے ریلیٹڈ، تو وہ کہتی ہیں کہ پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہاں؟ آپ کیا ایز این ایکسپرٹ سمجھتے ہیں مسئلہ کہاں پہ پایا جا رہا ہے؟ کیا چیز حل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے صارفین ہیں اور ہماری عوام ہیں ان کو بلا تعطل جو ہے وہ انٹرنیٹ مل جائے؟ دیکھیں، ملک میں جمہوریت کا مسئلہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے دن ہی انٹرنیٹ اور فون کو بند کیا گیا تھا تاکہ الیکشن کے رزلٹ کو مینیپولیٹ کیا جائے۔ تو اس کے بعد جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایسی حکومت کر رہی ہے جس کے پاس اختیار جو ہے وہ کنٹروورشل ہے، وہ کنٹیسٹڈ ہے، وہ لیجیٹیمیٹ نہیں۔ اور یہ ہمیں پھر روزمرہ زندگی میں نظر آتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے جو ایک حکومت کے پاس، الیکٹڈ حکومت کے پاس ہونی چاہیے۔ تو جب ان کے ہاتھ میں کوئی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے تو وہ پھر روز ادھر ادھر کے بہانے بناتے رہتے ہیں۔ جو اصلی بات ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی نوعیت کی سرسرشپ ہے، جس میں ریاست نہیں چاہتی کہ پاکستانی شہری انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنی آواز اٹھائیں اور جو ظلم اور غلطیاں ہو رہی ہیں اس ملک میں اس کے بارے میں بات کریں۔ تو اسامہ، کبھی تو ہمیں یہ بھی جسٹیفیکیشن ملتی ہے جی سیاسی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ایپس اور دیگر جو ایپس ہیں وہ بھی بند کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کیا واقعی ٹویٹر کے ذریعے سیاسی دہشت گردی ایکس کے ذریعے پاکستان میں ہوتی ہے اور اس کو بند کر دینا اس کا حل ہے؟ کیا واقعی میں دہشت گردی اس سے کنٹرول ہو رہی ہے؟ نہیں جی، یہ دہشت گردی کے بہانے بہت پرانے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کا بہانہ کر کے سب پہ جاسوسی کی گئی، ان کا ڈیٹا لیا گیا، اور دیگر جو آپ کی پولیسنگ ہوتی ہے، جو سیکیورٹی کے اقدامات ہوتے ہیں، جو ویپنز کا ٹریڈ ہوتا ہے، اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے امریکہ میں پھر دہشت گردی کے بہانے سے سب کچھ پاورز لی گئی۔ اسی طرح ہم ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ جب وی پی این کو بھی دہشت گردی کے لیے دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے لیے بھی دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں۔ دہشت گرد تو سڑکیں بھی استعمال کریں، وہ بھی بند کر دینی چاہیے، اور اسکول بھی بند کر دیں کیونکہ دہشت گرد ادھر چھپ سکتے ہیں۔ یہ عجیب بہانے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اصلی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیاسی سینسرشپ ہے، ہمیں اسی طرح اس کو دیکھنا چاہیے، اور جو ہمارے حقوق ہیں آئین میں ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو اس نیریٹو کو بالکل ریجیکٹ کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کی وجہ سے انٹرنیٹ پورے پاکستان کے لیے ہم بند کر دیں گے یا خراب کر دیں گے۔ تو جو شزا فاطمہ ہے وہ تو کہتی ہیں جی آپ یہ جو کہا جا رہا، رپورٹ کیا جا رہا نقصانات ہو رہے ہیں وہ اس کی نفی کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 30% جو ہے نا آئی ٹی برآمدات ان میں اضافہ ہو گیا۔ یہ انہوں نے حالیہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ تو آپ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، صارفین پہ کوئی بوجھ نہیں ہے؟ شہزاد فاطمہ صاحبہ کو تھوڑا سا ایمبیشیس ہونا چاہیے، 30% سے انہیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ جب 300% انکریز ہو سکتا تھا اور صرف 30% انکریز ہوا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ گمبھیر بات ہے۔ تو میرے خیال سے ان کے ٹارگیٹس کم ہوں گے، لیکن ملک کے، قوم کے نوجوانوں کے ٹارگیٹس جو ہے بہت اونچے ہیں، اور حکومت اور ریاست ان کے راستے میں آ کے ان کے ٹارگیٹس، ان کے پوٹینشیل کو کم کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا 2024 میں 1.6 ملین یعنی کہ 16 لاکھ پاکستانی لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے اور دیگر ملکوں میں، اور یہ جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ بڑا نمبر ہے کہ کسی ایک ملک سے لوگ گئے ہیں۔
ये क्यों जा रहे हैं? इस हुकूमत की नाकामियों की वजह से जा रहे हैं। तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए बजाय ये कि शुतुरमुर्ग की तरह ये लोग प्रिटेंड करें कि सब कुछ ठीक है, कोई मसाइल नहीं है। इन्हीं की वजह से मसाइल आ रहे हैं। इस हुकूमत को सबसे पहले ये एक्नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उसके बाद जो है ये सॉल्यूशंस इनको मिल सकेंगे और बेहतरी आ सकेगी। उसामा, हम आए रोज़ ये वाक़यात सुनते हैं जो आपने ज़िक्र किया ना कि 16 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने दूसरे ममालिक का रुख कर लिया। एक बड़ा चैलेंज है इंसानी स्मगलिंग का। लोग डंकी लगाना तो पसंद कर रहे हैं, यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे। जिस तरह से आपने कहा है कि टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर मैं चाहूँ कि हमारे जो आम नौजवान पढ़े लिखे हैं, आप उनके लिए गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि क्या उनको सॉल्यूशंस देने चाहिए? क्या लैपटॉप्स दे देना इनफ है, या उनके लिए रोज़गार के मौके? और जो आईटी का शोबा है, ये बहुत बड़ा शोबा है। हमने देखा है अपने सरहद पार हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए। इसी हवाले से, तो आप इस हवाले से कुछ कहेंगे? जी, बिल्कुल, देखिए हमारी जो पाकिस्तानी कौम है और पाकिस्तानी नौजवान हैं, मैं समझता हूँ दुनिया के ज़हीन-तरीन नौजवानों में से जाने जाते हैं। अगर फ्रीलांसर्स देख लें पाकिस्तान में दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पे नफ़री सबसे ज़्यादा है फ्रीलांसर्स, और उनका इनकम भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे नौजवान तो घर बैठे अपने मसलों के हल निकाल रहे हैं। बस हुकूमत को सिर्फ़ इतना करना है कि उनके रास्ते में ना आए। उनको इंटरनेट की सर्विसेज़ जो हैं बहाल रखें, स्पीड और क्वालिटी उसकी अच्छी रखें, सिर्फ़ इतनी सी बात है, और नौजवान अपना काम हुँ। खुद भी निकाल सकते और जो पढ़े लिखे लोग डंकी लगाने पर मजबूर हैं, आपको लगता है कि इंसानी स्मगलिंग में इल्लीगल तरीके से बाहर जाना, शायद वो अमीर होने का जो ख्वाब है, वो अपने ही मुल्क में अगर रोज़गार के नए-नए मौके मिल जाएँगे, तो उसमें भी कमी आएगी? हैं। बिल्कुल, हम इधर बैठे बाहर अगर काम कर सकते हैं, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? तो उसामा खिलजी, ये भी बताइएगा, हमारी बहुत सारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं जिसमें ज़ाहिर है आज़ादी राय भी है, ह्यूमन राइट्स भी हैं। फिर हमने देखा कि जब सहाफ़ियों के साथ जो है बुरा सलूक किया गया, बेजा मुकदमात बनाए गए। हरमीत सिंह पे रिसेंटली बहुत सारी एफआईआर्स हुई हैं 26 नवंबर के बाद से। फिर हमने देखा मतीउल्लाह जान जो इंक्वायरी कर रहे थे, उन पर भी वो एक आइस का पर्चा बनाने की कोशिश की गई। तो हमने देखा यूरोपीय यूनियन ने, अमेरिका ने, यूके ने, सब ने रिएक्ट किया। इवन यूरोपीय यूनियन ने तो ये तक कह दिया कि जीएसपी प्लस कंडीशनड हो सकता है इन सारी वायलेशंस के हवाले से। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को एक खतरे की घंटी उनके लिए बज चुकी है, उन्हें ये सारे मामला सुधारने की ज़रूरत है? जी, बिल्कुल, देखें अब कौमी सतह पे तो आप लोग जो है लोगों को चुप करा देते हैं, उन्हें जेल में डाल देते हैं या उनको उठा के गायब कर लेते हैं। लेकिन आप एक बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी में रहते हैं जिसमें आपके इंटरनेशनल लॉ के कमिटमेंट्स हैं, और उस पे अकाउंटेबिलिटी होती है, और फिर जीएसपी प्लस जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक स्टेटस दिया है पाकिस्तान को कि अगर आप ह्यूमन राइट्स रिफॉर्म करेंगे, तो उसके कंडीशन पे हम आपको जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं, उन पे टैरिफ या टैक्सेस जो है कम लगाएँगे। तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स के हालात हैं आजकल, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स चल रहे हैं, जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, इज़हार राय की आज़ादी पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, इंटरनेट की सहूलत ख़राब है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से हम जीएसपी प्लस स्टेटस लूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत पे बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। और जो लोग पाकिस्तान में ज़ाहिर है इंटरनेट की जो रफ़्तार है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है, और इंटरनेट जब दिल करे गवर्नमेंट का वो इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है। जिस तरह से आपने वाक़ई में कहा कि ये हुकूमतों का मसला है और सियासी मसला है, तो बहुत सारे लोग अपनी जो कंपनीज़ हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं दीगर ममालिक में। इवन बड़ी लुक्रेटिव जो ऑफ़र्स हैं मलेशिया की तरफ से, दुबई या फिर अदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि लोग वहाँ पर जाने को मजबूर हो गए हैं। तो जिस तरह आपने ज़िक्र किया, और हम बात कर रहे हैं कि 33% या 30% कोई ऐसा बड़ा हिस्सा नहीं है टेक इंडस्ट्री का जो कि बरामदात में इजाफा हो तो हुकूमत बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए। आप क्या कहेंगे ऐसी कंपनीज जो शिफ्ट होना होना शुरू हो गई हैं और होना चाहती हैं, क्या गवर्नमेंट को इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, या गवर्नमेंट कभी पीटीआई की बात करेगी कि ये पीटीआई का कसूर है, कभी वहेल मछली का है, कभी किसी और का है और जिम्मेदारी नहीं लेंगे? जी, हुकूमत के पास जब असली जमहूरी वो लेजिटिमेसी नहीं होती है, तो फिर वो औरों को ही ब्लेम करते हैं, खुद ब्लेम नहीं लेते। लेकिन हमारे सामने सब कुछ हो रहा है कि इनकी नाकामियों की वजह से ही लोग छोड़ते जा रहे हैं मुल्क, और आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो रहा है।
तो मेरे ख्याल से वो अगर कमिटमेंट करें, सही तरह बातचीत करें सेक्टर के साथ, ओपनली, ट्रांसपेरेंटली बताएँ कि उनके क्या प्लान्स हैं और किस तरह पाकिस्तानी शहरियों की मदद कर सकते हैं उनके प्लान्स में, अगर बेहतरी के प्लान्स हैं। तो फिर बेहतरी आ सकती है। तो उसामा जो पाशा है उसको थोड़ा-सा गवर्नमेंट बैक्ड ऑर्गेनाइज़ेशन का कह लीजिए कहा भी जाता है, उस हवाले से उनका तारुफ़ कुछ इस किस्म का है, लेकिन वो खुद भी उनकी भी रिपोर्ट है। इसके अलावा जो अदर ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनकी भी रिपोर्ट सामने आई हैं, जो पाकिस्तान को तकरीबन 1.16 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ये जो टैक्स से रिलेटेड हमारे इश्यूज़ हैं, जो हम हल नहीं कर पाए हैं। तो आप क्या समझते हैं इकॉनमी का इन्हिसार, नई इकॉनमीज़ की ज़ाहिर है इसका जो कह लें कि रुख जो है या उसकी जो सिमत है वो चेंज हो चुकी है दुनिया की इकोनॉमीज़ की। तो टेक जो इकोनॉमी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को क्या रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है? अरबों डॉलर का हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन हम अभी ब्लेम गेम से बाहर नहीं निकले। कुछ वो बातें भी हमारे साथ शेयर कीजिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या खसारे हो रहे हैं टेक पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करने से, कदम लगाने पे और सही जो इंटरनेट है उसकी फ्राहमी ना मिलने से सिर्फ फ्रीलांसर्स, ई-लांसर्स जो हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि खुद गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यूज़ में भी तो कमी आती है। बिल्कुल, ये सब कुछ आपने फौजिया खुद ही कह दिया है। सही आप मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा हमें गाइड करें कि क्या दुनिया में हमारी इकॉनमी पे प्रेशर है? क्योंकि हमें अपनी इकॉनमी को भी तो जदीद करने की उसामा ज़रूरत है ना, कि हम वही टेक्निकल तरीके से जी इतना हमारा ज़राई शोबा करता है, इतना हमारा सर्विसेज़ का शोबा है और वो भी वही वाले पुराने शोबे हैं। हम कई नए अपने नौजवानों के लिए ना इदारे खोल सके हैं। हम मतलब मैं इस चीज़ को बुरा नहीं कह रही कि लैपटॉप देना चाहिए, लेकिन हमें क्या टेक्निकल एजुकेशन की तरफ नहीं चले जाना चाहिए? सॉफ्टवेयर्स हमारे मुल्क में नहीं बनने चाहिए, आईटी हब्स यहाँ नहीं आने चाहिए। गवर्नमेंट को तो ये तरजीहात में शामिल करनी चाहिए चीज़ें। बिल्कुल, उन्होंने आईटी सिटी बना दिया है लेकिन इंटरनेट को बंद रख दिया है, तो फिर आपके सामने ही है कि क्या उसके नताइज हैं। और जो लॉस है इकॉनमी को, जिस तरह आपने कहा, 1.6 बिलियन डॉलर है, जो इंटरनेट की बंदिश की वजह से दुनिया में सबसे बड़ा कॉस्ट पाकिस्तान को हुआ है। तो इसको ऑब्वियसली सीरियसली लेने की ज़रूरत है इकॉनमी को। और जो दुनिया भर से रिपोर्ट्स भी आई हैं, उसमें भी पाकिस्तान जो है इंटरनेट की जो फ्राहमी है उस मतलब म्यांमार और सूडान जैसे मुल्क जो हैं उनकी एग्जांपल्स दी जा रही है और पाकिस्तान बड़े बदतरीन ममालिक की सब में शामिल है। तो हम तो हर मामले पे कंपेयर भी करते हैं और मुकाबले की दौड़ में लगे भी रहते हैं हिंदुस्तान के, लेकिन उनका तो जो टेक का शोबा है वो बहुत आगे है हमसे। तो आप क्या कहेंगे इस बदतरीन नंबर्स की जो फहरिस्त है, इससे निकलने के लिए पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, जमहूरियत को बहाल करना चाहिए, जो आपकी सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। आप छोड़े कि सिविलियंस ही उन्हें चलाएँ, और जो आपकी टेक सेक्टर है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, लीगल कम्युनिटी है, उनके साथ आप मशवरा करके जो है नए कवानीन और पॉलिसियाँ बनाएँ, तो तभी बेहतरी आ सकती है। अगर एक ही जगह बंद कमरों में कवानीन बनेंगे और पार्लियामेंट उन्हें रबर स्टैम्प करेगी और इस तरह पॉलिसियाँ बनेंगी, तो फिर तो पाकिस्तान का कोई हाल नहीं होगा। उसामा हमें ये भी बताइएगा, पीटीए की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि इंटरनेट सार्फिन और जो इस्तेमाल करने में ख़वातीन की तादाद इंतहाई कम है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। हमारी जो इकॉनमी है अगर उसको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करें तो ज़ाहिर है ख़वातीन का भी उतना ही रोल है। तो आप क्या समझते हैं ख़वातीन की जो ट्रोलिंग और साइबर थ्रेट्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे? खुद हम देख रहे हैं कि डीप फेक की भी अगर बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हवाला दूँ तो ये बहुत सारे ऐसे ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ तो है, लेकिन उसमें ज़रूरत है कि आप, अगर आप ख़वातीन को थ्रेटन करते हैं, तो उसका कोई कानून नहीं। अगर कोई धमकी आपको देता है, जब किसी के साथ जुर्म हो जाता है, तो फिर आप एफआईए के पास जा सकते हैं और आप केस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई धमका रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो अभी तक पाकिस्तान में क्राइम नहीं है। तो मेरे ख़्याल से ये थोड़ा लेजिस्लेटिव भी रिफ़ॉर्म लाना चाहिए, जो ज़्यादा पॉलिटिकल अमेंडमेंट्स हैं वो लाए जाते हैं, लेकिन जो सिटीज़न प्रोटेक्शन के अमेंडमेंट्स हैं, वो नहीं लाए जाते। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके अलावा इसमें हमने ये भी देखना है क्या तरजीह दें। मेरे ख़्याल से तो ख़वातीन के साइबर क्राइम्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए एफआईए के अंदर, या अलग डेस्क होना चाहिए हर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि एक बहुत सीरियस मसला है, और इसी वजह से कम ख़वातीन को इजाज़त मिलती है घर में कि वो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करें। जो जेंडर डिजिटल डिवाइड है वो पाकिस्तान में वसी तरीन है, अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा और फिर पाकिस्तान में।
जिसका मतलब है कि पाकिस्तानी ख़वातीन एज़ अ परसेंटेज सबसे कम नंबर है परसेंटेज में जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है एज़ कम्पेयर टू मर्द हज़रात। तो इसमें हमें यही नज़र आता है कि ख़वातीन को फ़ैसिलिटेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए कि वो इंटरनेट के जो फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं, उनका सही से जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकें। बजाए ये कि उनके जो क्राइम्स होते हैं उनके ऊपर इंटरनेट के ज़रिए उसको सीरियसली ना लिया जाए, उसको इन्वेस्टिगेट ना किया जाए, उसके कोर्ट्स में कुछ हल ना निकले और फिर ख़वातीन डिस्करेज हों इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से। ठीक। उसामा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिसइन्फॉर्मेशन, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन। मीडिया लिटरेसी कितनी ज़रूरी है? क्योंकि शायद ख़वातीन, जैसे आपने खुद भी कहा कि उनको जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी तो हमारी लेजिस्लेशन ही इंक्लूसिव नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? ख़ास तौर पर डीप फेक भी है जिसमें सियासतदान ख़वातीन भी हैं। इवन के माजी में भी हमने देखा है, कभी डॉक्टर शीरीन मज़ारी को सामना करना पड़ा, डॉक्टर फिरदौस आशी कवान, इवन मरियम नवाज़ अभी भुगत रही हैं डीप फेक का चैलेंज। अज़मा बुखारी का केस जो है वो अदालत में पेंडिंग है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ख़वातीन को, मतलब कि फ्रेंडली उनके लिए ये टेक्नोलॉजी भी हो, इंटरनेट और जितना सारे सॉल्यूशंस अपने मसाइल के हल के लिए या अपने बिजनेस के लिए आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया भर में, ख़वातीन भी उसी तरह से कर सकें? तरक्की पजीर ममालिक में ये बहुत बड़ा खतरा और खौफ है ख़वातीन के लिए। इवन के हम तो यहाँ तक अटके हुए हैं कि अपने डीपी तक ना लगाएं, वो फूल, गुलदस्ता या कुछ ऐसी तस्वीर लगा दें। तो क्या इंटरनेट को फ्रेंडली बनाने के लिए भी क्या कानून साजी की ज़रूरत है या रवैया साजी की ज़्यादा ज़रूरत है? दोनों की। तो एक तो जिस तरह मैंने ऑलरेडी कहा कि आप जो है उनको धमकियाँ देना भी या उनको ब्लैकमेल करने को भी क्राइम बनाएँ। और फिर आप एफआईए में फैसिलिटेट करें ख़वातीन को ख़ास तौर पे बजाए ये कि आप उनको घर भेज दें या बोलें उनका क्राइम सीरियस नहीं है या उनको और उल्टा और आप विक्टिम ब्लेम करें। और इसमें ये भी ज़रूरत है कि जो माइंडसेट है उसमें भी तब्दीली की ज़ाहिर-सी बात है ज़रूरत है कि आप जेंडर सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग दें अपने हुकूमती और अपने कोर्ट के एहलकारों को, लॉयर्स को। और इसके अलावा फिर आप सपोर्ट करें ख़वातीन का इंटरनेट का इस्तेमाल करना। तो पीटीए की ये ज़िम्मेदारी बनती है, उन्होंने जेंडर इंक्लूजन स्ट्रैटेजी तो बनाई है, लेकिन वो लाइसेंसिंग टर्म्स में अपने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो है बोलें कि आप ख़वातीन के लिए ख़ास पैकेजेज़ बनाएँ, उनके इंटरनेट के इस्तेमाल करने को एनकरेज करें और फिर जो आपका निसाब है, आपका जो स्कूल में या यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, उसमें आप इंटरनेट से रिलेटेड जो लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, वो निसाब में इंक्लूड करें ताकि वो बचपन से ही ये सब कुछ सीख लें और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके, अच्छा इस्तेमाल करके वो कमाई भी कर सकें। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर पूछूँगी, क्या कोई ऐसी हेल्पलाइन वगैरह है अगर बुलिंग का या जो साइबर से रिलेटेड थ्रेट्स हैं, उनका सामना हो तो कहीं पर कोई राब्ता वगैरह किया जा सकता है? डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की हेल्पलाइन है, टोल फ्री नंबर है 0800 93939। उसमें वो लीगल सपोर्ट भी देते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट भी, अगर आपको साइबर हरासमेंट का सामना करना पड़े। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी कि कहते हैं कि राइट साइज़िंग या राइट पीपल फॉर राइट जॉब। हमें नज़र आता है कि जो जब भी कैबिनेट बनती है, शायद नेपोटिज़्म या बहुत सारे अदर एलिमेंट्स तो डोमिनेट आ जाते हैं, लेकिन जिसका जो शोबा होता है वो उसको नहीं दिया जाता। शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा जो हैं वो नो डाउट एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिक्स उनका मेजर सब्जेक्ट है, लेकिन आईटी से जुड़ी हुई हैं। आपको लगता है कि रेलेवेंट जो लोग हैं या उनकी जो काबिलियत है वो उस शोबे से रिलेटेड हो, तो उनको अगर पोर्टफोलियोज़ दिए जाएँ तो कुछ बेहतर सूरत हाल सामने आ सकती है? या फिर ये जो पीटीए वर्सेस मिनिस्ट्री और वहेल मछली पिंग पोंग है, इसी किस्म के मसाइल हमारे सामने आते हैं, इस पे क्या कमेंट करेंगे? जी, देखें आप ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो, लेकिन अगर टेक्निकल एक्सपर्टी आपके पास हो तो आप अपनी जॉब काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर आप क्रिटिकली एनालाइज़ भी कर सकते हैं कि मुझे जो बताया जा रहा है वो सच है या झूठ है। तो जो अभी मिनिस्टर साहिबा हैं आईटी की, उनको जो बताया जाता है वो आगे जाके कह देती हैं, लेकिन वो अक्सर जो है गलत होता है। तो ये तो मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन भी हो जाती है अक्सर। और ये डिसइन्फॉर्मेशन पे कवानीन लाना चाहते हैं, लेकिन खुद ये फैला फैला रहे होते हैं। तो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं जिनकी आईटी की स्किल्स हो उसमें, मेरे ख्याल से उनको अगर ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ दें कि वो इस पे काम करें, तो शायद ये मसाइल हमें सामना ना करना पड़े। लेकिन मेरे ख्याल से वो चाहते नहीं हैं कि जो टेक्निकली साउंड लोग हैं, वो यहाँ आए, क्योंकि फिर जो गलत काम ये लोग करना चाह रहे हैं, वो उसको मानेंगे नहीं।
तो क्या इंटरनेट की फ़राहमी किसी मुल्क में एज़ ए फंडामेंटल राइट भी शामिल है, और क्या पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत है कि इसको इस लिस्ट में शामिल किया जाए? जी, मेरे ख़्याल से एस्टोनिया में जो है फंडामेंटल राइट उसको कहा गया है और यूएन ने भी रेकमेंड किया है। लेकिन इसको बिल्कुल कानून साज़ी होनी चाहिए कि आप इंटरनेट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करें और आप इसमें ये भी ज़रूर गारंटी दें कि इंटरनेट को कभी बंद नहीं किया जाएगा। कि ये बिल्कुल इलेक्शन के दिन, इम्तिहानों के दिन, किसी त्योहार के दिन या किसी प्रोटेस्ट के दिन आप इंटरनेट को बंद कर देते हैं और पूरे मुल्क को जो है कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं, जिसमें सबको जो है मसले का सामना करना पड़ा। जी। बहुत शुक्रिया उसामा खिलजी, आपने अपना कीमती वक़्त दिया माइनस न्यूज़ के लिए। उन तमाम तर इश्यूज़ और चैलेंजेस पर आपने बात कर दी है जिसकी ज़रूरत है, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में इंटरनेट की जो बिला तात्तुल फ़राहमी है वो हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। दीगर जो बहुत सारे इश्यूज़ सामने आते रहते हैं, इस हवाले से हम अगेन भी आपको मदऊ करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया।